Morning, everyone. सुनाई पड़ रहा है? So, good morning, all of you. Today we'll start the application of Laplace transform. So, in share application of Laplace transform is that Laplace transformation is a mathematical tool which is used in the solving of differential equation by converting it from one form into another form. Generally, it is effective in solving linear differential equation, either ordinary or partial. It reduces an ordinary differential equation into algebraic equation. Ordinary differential equation with constant coefficient and variable coefficient can be easily solved by the Laplace transformation method without finding the generalist solution and the arbitrary constant. It is used in solving the physical problem. This involving integral and ordinary differential equation with constant and variable coefficient. This is the application of Laplace transform. So let us start some problem of Laplace differential equation. We can see solve the following differential equation by Laplace transform. Differential equation we have y triple dash plus 2y double dash plus minus y dash minus 2y equal to 0. Given y equal to 0 dy as given. So let us start as given the differential equation we have. देखो differential equation we have, okay, taking by Laplace transform on both sides we have. देखो y triple dash we have y here sqy bar minus s square y 0 minus s y dash 0 minus y double dash 0 we have. Again is 2y double dash 2y dash 2 already have and y dash we have. Y dash double dash can write s square y bar minus y 0 minus y dash 0 and y dash already have and Laplace transform y we have y bar s equal to 0. इधर किन्ने बोलो फॉर्मूला क्लियर है? नहीं तो फॉर्मूला को हम दिखाएंगे. नहीं समझ आया था. हाँ टेल मी. नहीं समझ में आप नहीं सर. ओके
देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव देखो डेरिवेटिव फॉर्मूला ऑल ऑफ सी देखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है। बोलो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव if functions of t be continuous and Laplace transform function set f t equal to f bar s, then Laplace transform f dash t equal to s f bar s minus f zero डेरिवेटिव फॉर्मूला क्लियर है कि नहीं बोलो। क्लियर है एनीवन? बोलो। यस सर। अच्छा ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला क्लियर है बोलो। यस सर। ये फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ डैश डबल एस टी, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला भी तुम्हारा देखो सेकंड डेरिवेटिव फॉर्मूला देखो जो हम निकाल रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर एन, देखो इसको हम लोग निकाल रहे हैं लैप्लास डबल डेरिवेटिव फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्लियर है? The previous class already have discussed derivative of Laplace transform. इस derivative formula है, इसी formula based that formula are used in application of differential equation Laplace transform. Clear? इसी formula base पे बन रहा है। ये formula clear है? यस सर। थर्ड ऑर्डर फॉर्मूला देखो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला ये है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला क्लियर है बोलो। बोलो एनीवन स्टूडेंट? सर एस क्यू के बाद एफ एफ डैश है या फिर सिर्फ एफ लिखा हुआ? बोलो बोलो यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ तो हाँ सर। एस टू एफ बार एस माइनस एस स्क्वायर एफ बार है। एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो इस थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है एस स्क्वायर एफ बार एस एफ जीरो एफ डैश जीरो। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या होता है एस लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी माइनस एफ जीरो। लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी मतलब मींस क्या हुआ एफ बार एस, ठीक है। यही एफ बार एस लिखते हैं, एफ बार एस दैट इज एफ बार एस, ठीक है। अब सारा फॉर्मूला जो आ रहा है बोलो सर एफ बार एस मतलब सर बेसिकली डेफिनेशन है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या होता है लैप्लास में एफ टी इक्वल टू एफ बार एस। लैप्लास ट्रांसफॉर्म बता रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म में एफ टी जो होता है, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इक्वल टू क्या होता है 0 to इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल माइनस एफ टी डी टी होता है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, किसी भी फंक्शन में हम सॉल्व करेंगे वो तुम्हारा सॉल्व करने से एस के फॉर्म में आएगा। यस सर। तो एस के फॉर्म में आएगा, तो इसीलिए हम लोग बेसिकली एफ बार एस के फॉर्म में लिखते हैं।
लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफटी को एफआरएस बोलते हैं। ठीक है सर। तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला वी हैव, ठीक है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव फॉर्मूला वी हैव उसी को बेस पे बनाए हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला वी हैव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर्मूला वी हैव, ठीक है। और देखो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन वी हैव इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिए, तो देखो थर्ड ऑर्डर इसको हम लोग वाई ट्रिपल डैश को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, बोलो है। यस सर। थर्ड ऑर्डर सेट प्लस 2y डबल डैश, तो 2 ऑलरेडी है, y डबल डैश वी हैव, देखो y डबल डैश वी हैव, ये फॉर्मूला y डबल डैश वी हैव, बोलो किधर है। नो सर कौन लिख रहा है, एनीवन टेल मी, इसे समझ। बोलो एस वाई बार माइनस वाई जीरो, बट बुर्बक क्या पढ़ा रहा है? इधर है। स्टेप को समझो पहले, उसके बाद बट बुर्बक ऐसा वाई लग रहा है डैश, कि पढ़ा देना है हमने। देखो सारा वैल्यू का हम पुट कर दिए, वाई जीरो वाई डैश जीरो, वी हैव आगे जो क्वेश्चन जीरो, वाई डबल डैश जीरो इक्वल टू 6, देखो वाई डबल डैश जीरो 6, ऑल वैल्यू हियर वी हैव द दिस फॉर्मूला, क्लियर है। स्टेप आफ्टर दैट इसको सॉल्व कर देंगे, तो y बार ये मिला, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो यहाँ y हो जाएगा, आफ्टर दैट लैप्लास इनवर्स, ठीक है। आप इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करने के बाद तुमको ये मिलेगा, क्वेश्चन 1 मिलेगा, देखो। अच्छा तो ऊपर दिखाई ना सर। हाँ बोलो ना। ठीक है सर। ये देखो
आप देखो इक्वेशन 1 है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको पहले सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो भाई पार्शियल फ्रैक्शन वी हैव, पार्शियल फ्रैक्शन वी हैव, इसको लिख दिए, ठीक है। आप इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करो, इक्वेशन 3 बढ़ेगा, सारा वैल्यू को निकालेंगे, एबीसी निकाल देंगे, सारा वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू एबीसी का वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, एबीसी वैल्यू निकालेंगे। एबीसी का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ बी इक्वल टू 1/3 निकला। जब दिखाई ना, ऊपर दिखाई ना। हाँ बोला ना। हाँ सर, हो गया। हो गया ना। तो सारा वैल्यू एबीसी वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन 2 में आते हैं, मतलब इज इक्वेशन 2, मतलब ये तुम्हारा इक्वेशन 2 में आएंगे हम, ठीक है। इक्वेशन 2 तुम्हारा बन जाएगा, सब वैल्यू पुट कर दो, एबीसी पुट कर दो तो ये मिलेगा तुमको, ठीक है। तो पुट करने के बाद नेक्स्ट इज फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 मिलेगा, इक्वेशन 1 में आ जाओ, y इक्वल टू, इसको ब्रेक कर दो, सब वैल्यू को पुट कर दो, ये वैल्यू जो है इसको हम लोग पुट कर दें कहाँ, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कहाँ, ये है, इसे पुट कर दो, तो देखो y इक्वल टू ये है, तो निकला देखो वैल्यू। क्लियर है, बोलो। बोलो एनी वन स्टूडेंट वी हैव, इधर कि नहीं बोलो। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव, देखो यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंडिंग सॉल्यूशन दिस फॉर्मूला, ठीक है, where y 0 = 2 and y dash 0 = 0, as given your question we have लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो लगा दो y डबल डैश का क्या होगा, ये होगा 25y, दैट इज 25y बार, और 10 cos 5t का लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, s बाई s को प्लस 5 स्क्वायर। इसको ब्रेक करो, ब्रेक करने में देखो ये मिलेगा, देखो मिलेगा, क्लियर है कि नहीं बोलो। एनीवन स्टूडेंट बोलो, टेल मी, बोल सकते हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है समझने में तो।
बोलो। सर जो लास्ट लाइन में है तो वहाँ लैपलेस इनवर्स ऑफ वाई टी होगा ना सर? अब बोलो ना, कहाँ पर बोलो, लास्ट लाइन सर, लास्ट लाइन बोलो तो। सबसे नीचे है ना सर, उससे नीचे है सर। हाँ, यस, ये, हाँ बोलो। सर यहाँ लैपलेस इनवर्स ऑफ वाई टी होगा ना सर? इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, ये जो बन गया, ये वाई बार जो निकला है, इसके बाद हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तब जाकर वाई बार, ठीक है, वाई बार एस, हम लोग इसमें इनवर्स लगा देंगे तब बन जाएगा वाई टी बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये रेड हरा, तुम लोग रेड कौन किया है, रेड मार्क हटा। पता नहीं सर कौन। तो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है, अब हम लोग लैप्लास इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो इसका फॉर्मूला तुम्हारा बनेगा टी साइन टी बन जाएगा, ठीक है, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos t, ठीक है। इनवर्स लैप्लास, आप लोगों से टी साइन टी कैसे आ रहा है, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो बन जाएगा, देखो साइन लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी का फॉर्मूला होता है, ये होता है, टी साइन टी को ब्रेक कर देंगे तो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये मिल जाएगा तुमको, समझ रहे हो ना। यस सर। हाँ, और डेरिवेटिव फॉर्मूला यूज करने से मिलेगा, अदरवाइज ऐसे ही बन सकता है, इसको हम लोग बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम से ही बना सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को, इसका इस फंक्शन को दिक्कत नहीं है कि इसका फॉर्मूला बेसिकली cos 5t होता ही है, ठीक है। इसको हम लोग डेरिवेटिव फॉर्मूला अगर तुमको बाय द वे इसे बना सकते हो, अदरवाइज कन्वोल्यूशन थ्योरम से भी इस फंक्शन को सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हम बताएंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व कैसे किया जाता है, उसका भी प्रॉब्लम किए हुए हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट हर प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, ये कौन लिख रहा है, हम उसी को रिमूव कर देंगे, वही बोल सकते हो। क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है। देखो देखो टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसको हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव ये होगा, 4x का फॉर्मूला क्या होगा, ये मिलेगा, और xt का फॉर्मूला मिलेगा तुमको, ये मिलेगा, है ना, और x बार s मिलेगा तुमको ये, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, 4/s+2, ठीक है ना। अब सारा वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तुमको ये मिलेगा, किधर है बोलो। यस सर। सो नेक्स्ट स्टेप,
अब देखो ये मिलेगा, देखो चेक करो। एक्स बार इक्वल टू 4/s+2 का होल क्यूब माइनस s/s+2 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं बोलो? ठीक है, बोलो। नेक्स्ट इज इनवर्स, टेकिंग इनवर्स लैप्लस ट्रांसफॉर्म वी हैव, देखो एक्स टी इक्वल टू, सॉल्व करके ये मिला, देखो ये मिलेगा तुम्हें एक्स टी इक्वल टू लैप्लस इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। बोलो। यस सर। सो नेक्स्ट इज, अब इसको सॉल्व करो। एक्स टी इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो लैप इस तरह से लिख सकते हैं। ये स्टेप किधर है, देखो। यस सर। ओके, आप बताओ ये लाइन पूरा किधर है? ठीक है बोलो। समझ में आ रहा है? यस सर। इधर है स्टेप। यस सर, क्लियर है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव, देखो यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल स्क्वायर y इक्वल टू cos x, हमारे ये दिया हुआ है। अरे सिमिलर वे, देखो सॉल्व कर रहे हैं, देखो चेक करो। अब y बार इक्वल टू दिया हुआ है, ये बन गया s/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सर इस बस बोला ना, गए। बोला ना, बोलो।
बोलो। समझ गए सर। समझ गए? यस सर। अब ये समझ में आ रहा है? देखो तो इक्वेशन 1 समझ में आ रहा है? इक्वेशन 1 ठीक है, बोलो। क्लियर है कि ना, बोलो। यस सर, क्लियर है। That's clear or not? ये लो, नहीं समझ आया। यहाँ पर बोलो। सर साइन टी कैसे है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? लाप्लास ट्रांसफॉर्म साइन टी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। सर एस बाई ए बाई एस प्लस ए स्क्वायर। तो एक वैल्यू क्या है? 1 है ना? हाँ सर, ठीक है, समझ गए। ये क्लियर है? यस सर। ये क्लियर है? यस सर। सॉल्यूशन थ्योरम से ये क्लियर है? यस सर। क्लियर है, बोलो। ठीक है, बोलो। नहीं समझ आया सर, ये लो। क्या होता है? क्या चीज सर? टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। उसमें टू साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो ब्रेक करके लिखे हैं। फॉर्मूला तो याद नहीं है सर। टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला याद नहीं उनसे यही लगा, बोलो याद तो करना पड़ेगा ना।
ठीक है सर, हो गया, समझ गया सर। समझ गए? यस सर। अब पूरा स्टेप देखो। अब बोलो क्लियर है? यस सर। इक्वेशन 1 में देखो, ये पुट कर दिए, ये मिलेगा। सर ये वाला साइन टी इंटू यू वाला वो कैसे है, वो नहीं समझ आया। इसका बोल रहे हो? यस सर। एक्चुअली देखो, डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू यू में, ठीक है। आप इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन टी तो बाहर निकल जाएगा ना, यू का लिमिट, यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, यू का यू होगा, ठीक है। तो यू होगा, ठीक है सर। चेंज करेंगे तो क्या होगा, 0 से टी हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर, ठीक है। ठीक है भी सर, लिखे समझ हैं। गया। हाँ तो समझ गया, समझ गया।